Hello students, I am here with another video from the chapter of class 7 Science NCERT book. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the word wind, which means that it is a moving air and that air is moving in a slow motion or it could be a fast in its movement. If it is in slow motion, it is said to be as breeze. If it is very slow, it is a breeze. If moving air is there, then it is known as wind. अगर और तेज blow करती है तो cyclones, and then again if it is blowing, then it becomes storms, and if it blows at a very high speed, it becomes cyclones. Okay, so if we talk about winds, it means that it is the movement of the air also. तो एयर जब मूव कर रहा है तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एयर की क्या प्रॉपर्टीज है? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, and if we are doing the work against the pressure of the air, then it is also causing the problem in working would become difficult in that situation. ठीक है, चाहे वो it could be rowing of boat or bicycling, or if you are bicycling, then it could be a different thing. If you are flying a kite, then also it is a very problem situation. It creates a problem. Okay, air exerts pressure. Secondly, air also, the high speed winds are always developed. It is always it results in the low pressure. It results in the reduced air pressure. ठीक है, तो reduced air pressure की वजह से कहीं भी अगर डेवलप हो रहा है हाई स्पीड, तो वहां पर जरूर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा. फॉर दैट वी हैव सीन डिफरेंट एक्टिविटीज. You have to take a bottle where you will put a small piece of paper ball on it, just at the end of the mouth of the bottle, and you are blowing the air on that bottle. After that what happens? Blowing the air on that paper ball. फिर वो पेपर बॉल क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाता है, ना कि अंदर जाने से. बॉटल के अंदर नहीं जाएगा, बॉटल के बाहर गिर जाता है. रीजन रिमेन सेम दैट जब भी आप एयर ब्लो करते हैं तो जो बॉटल के बाहर की जो एयर है वो हट जा रही है, और जो कोल्ड एयर है बॉटल के अंदर वो एक प्रेशर लगा देती है, जिसकी वजह से एयर की वजह से बॉटल में से कागज बाहर आ जाता है. ठीक है, बॉटल पे से कागज बाहर गिर जाता है. फाइन. Now the next thing which we have to see, the next part, क्या होगा? जो एक्टिविटीज हमने देखी थी, बलून्स थे दो जहां पे स्टिक लगी थी, एंड देन 2 balloons were hanging on it, and if you are blowing air in between them, they were coming closer. Either they were not moving away, they were coming closer to each other. Okay, then you have also seen an activity where a paper strip is there upon which you are blowing the air, और फिर वो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ जाती है, क्योंकि air is being blown off from the upper part of that paper strip, due to which what happens, this paper strip is always straight, and then कुछ देर के बाद जैसे आप कोल्ड एयर जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है उस पेपर स्ट्रिप पर, जिसके वजह से पेपर स्ट्रिप सीधी हो जाती है. गॉट इट? सिमिलरली we have seen another experiment which was related with air expands on heating. You have to take a beaker in which a test tube was present. उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बलून लगा होगा. उस बलून को आपको, उस टेस्ट ट्यूब को आपको गर्म पानी में रखना है. फिर क्या करना है? देखना है कि क्या ऑब्जर्व करते हैं. You will see that the balloon starts inflating. कुछ देर के बाद जो बलून होगा वो ब्लो करता है, और वो बलून जो होगा that is going to be expanded, and then again if you are keeping it in the cold water, then again that balloon जो होगा वो फिर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि श्रिंक कर गई एयर कंडेंस हो जाती है. जब एयर कंडेंस हो जाएगी तो बलून के अंदर एयर नहीं बचेगी and gets shrinked. Okay, then lastly we saw about how the wind is blowing through uneven heating of the surface, and also about the uneven heating. दो जगह हो सकती है, पोल्स एंड इक्वेटर पे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द विंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स आर ब्लोइंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट एयर और वाटर, लैंड एंड वाटर पे भी ये अनइवन हीटिंग दिखाई देती है. ओके, तो लैंड वाटर पे अगर अनइवन हीटिंग दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि जो भी अनइवन हीटिंग है
वो लैंड ब्रीज सी ब्रीज से कॉज कर रहा था, उसी तरह से अनइवन हीटिंग यहाँ पर भी मॉनसून कॉज कर सकती है, या फिर समर के एरिया में, समर के सीजन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है. गॉट इट? नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी, you have also seen about the monsoon winds are carrying rainfall with it, and lastly we saw about the thunderstorms and the cyclones. So thunderstorms are the high speed winds which is being accompanied with the lots of noise and thunder of the clouds. अब जो thunderstorms हैं वो thunderstorms हमेशा एक लो प्रेशर एरिया डेवलप करते हैं, और साइक्लोन्स कैसे बन जाते हैं थंडरस्टॉर्म्स, ये भी हमने देखा था कि जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन की वजह से बहुत सारा एयर जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट कंडेंसेस. जैसे ही कंडेंस होता है हीट, जैसे ही हीट कंडेंस होती है वहां पर एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, और ये एनर्जी या ये हीट बाकी साइड के एयर को भी गर्म कर देती है, जिसकी वजह से हॉट एयर राइजेस अप, एंड जैसे ही वो स्विलिंग मोशन में इट राइजेस अप, साइड से कोल्ड एयर पूरी भर जाती है उस लो प्रेशर एरिया में. अब अगर लो प्रेशर एरिया में बहुत सारा एयर चला गया है तो क्या होगा, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस मूवमेंट उस एयर में प्रेजेंट हो जाता है, और कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं, एंड साइक्लोन्स में बहुत सारा स्विलिंग राउंड हो जाता है, जिसके वजह से जो भी चीजें उसके साथ में रहती हैं दैट राइजेस अप. एंड वी सॉ अबाउट द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज हाई स्पीड विंड्स, विंड डायरेक्शन. अगर विंड का डायरेक्शन सही नहीं होगा, साइड से सारी एयर अगर अंदर नहीं आ रही है, तो जो स्विलिंग मोशन है दैट वुड नॉट हैपन. ओके, so today I am going to tell you about the structure of cyclones. Structure of cyclone. क्या होता है structure of cyclone? A center of cyclone is a very calm area. ठीक है, center is a calm area. Center of the cyclone is a calm area. It is known as eye of cyclone. Eye of cyclone. कौन सी है साइक्लोन की आई? साइक्लोन की आई है जो कि एक बहुत काम एरिया है. दिस इज अ वेरी साइलेंट एरिया और अ वेरी काम एरिया which is present at the center of the cyclone, and this is known as the eye of cyclone. Okay, a large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere. ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है साइक्लोन की? साइक्लोन इज a huge, it is a huge or violently rotating mass of air it is a violently rotating mass of air in the atmosphere. In the atmosphere. So what is a cyclone? Cyclone is a huge violently rotating wind which is present in the atmosphere. Okay. Next, the diameter it is about 10 to 15 kilometers high. कितना इसका height हो सकता है? Height could be 10 to 15
किलोमीटर्स हाई, ठीक है। और डायमीटर कितना हो सकता है? डायमीटर हो सकता है 10 से 30 किलोमीटर्स, 10 to 30 kilometers in its diameter. It is a region free from clouds and has a high wind. ठीक है, बहुत सारी विंड ब्लो करती है और ये जो रीजन है यहाँ पर इस कंडीशन में कोई भी हाई स्पीड विंड्स के अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीजें, इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है, एंड हैज अ लाइट विंड. Around this calm area and the clear eye, there is a cloudy region. मतलब बीच में जो चीज आपको मैं बता रही हूँ आई के बारे में, वो एक बहुत एम्प्टी एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली लो प्रेशर डेवलप्ड रहता है, इसीलिए वो एक क्लियर एरिया है, क्लियर आई है. उसके साइड में एक पूरा क्लाउडी रीजन है एंड दैट क्लाउडी रीजन इज अबाउट 150 किलोमीटर्स. सो बीच में आई, उसके अगल बगल में क्लाउडी एरिया है. Which is about 150 kilometers. ठीक है, which is about 150 kilometers. In this region, there is a high speed winds of 150 to 250 kilometer per hour. कितनी तेज विंड ब्लो कर सकती है? 150 kilometers to 250 kilometers पर आवर. एक घंटे में कितनी किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? 250 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकती है एयर. इतनी स्पीड में ये एयर मूव करती है किसी भी साइक्लोन के अंदर. तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि एक सेंटर, एक एरिया है जहां पे बहुत शांति है, दैट इज नोन एज इट्स आई. उसके अगल बगल एक क्लाउडी रीजन पूरा प्रेजेंट है. उस क्लाउडी रीजन का जो हाइट है दैट इज अबाउट 150 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स हाई हो सकता है, 10 to 30 किलोमीटर्स का डायमीटर हो सकता है. एंड इसमें जो स्पीड ब्लो है कर रही है एयर की, जो स्पीड ब्लो कर रही है एयर में, स्वेलिंग मोशन जिसके वजह से आ रहा है, दिस इज अबाउट very greater speed of 150 kilometers to 250 kilometer per hour. And a thick cloud with a heavy rain. ठीक है, इसके साथ में बहुत तेज बारिश और बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं जो एक away from this region, a wind speed generally decreases and the formation of a cyclone is a very complex process. Okay, एक यहाँ पर आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है साइक्लोन्स का, जो आप लोगों ने भी, आई थिंक यू कैन सी दिस, इट इज गिवन हियर एज फिगर नंबर 8.11. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स. और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन में आप ध्यान देंगे कि बीच में एक सेंटर आई है, एक सेंटर पोजीशन है आई की. ठीक है, आप देखिए पूरा एरो सब तरफ बना हुआ है. दिस प्लेस इज कॉल्ड आई. ठीक है, दिस श्रिंक्स एंड इट at the base it is a little bit larger. You can see it is drawn like dotted lines. ठीक है, इधर से साइड में एयर उठ रही है. प्लीज मार्क द एरोस प्रॉपर्ली. इधर से एंड दिस फॉर्म्स एन एरो ओवर हियर. ठीक है, दिस साइड, एंड इधर से अप स्ट्रीम इधर से अंदर आती है एयर और इधर की तरफ बाहर निकल जाती है. ठीक है, अब क्या होगा अंदर में, क्या होगा इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस सर्कल फॉर्म कर देते हैं. फाइन, एंड आउटसाइड इट इज लाइक दिस.
इस तरह से आप देखेंगे कि एक बहुत सर्कुलर winds are blowing with high speed. With high speed. ठीक है, अब जब भी अब क्या दिया हुआ था कि जो सेंटर है वहां पर जो डायमीटर बन रहा है इसका यहां से यहां तक इट इज 10 to 30 किलोमीटर्स, 10 to 30 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स तक ये इसकी हाइट हो सकती है, 15 किलोमीटर्स तक। ओके, एंड स्पीड विंड्स क्या है? स्पीड विंड्स हाउ मच? स्पीड इज अबाउट 250 किलोमीटर पर आवर। तो इतना स्पीड में ये विंड ब्लो करती है जिसके वजह से एक बहुत हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, सॉरी एक लो प्रेशर एरिया कंटिन्यूसली यहाँ पर डेवलप्ड रहता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस मोशन मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे ही ये एयर प्रेशर में डिफरेंस खत्म हो जाता है साइक्लोन्स खत्म हो जाते हैं। ओके, इट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेनफॉल, इट ब्रिंग्स क्लाउड्स। ओके, सो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी ये कॉज करता है। कैसा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है? लेट्स सी। सो डिस्ट्रक्शन विच इज बीइंग कॉज्ड बाय द साइक्लोन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। यू कैन अंडरस्टैंड एक मूवमेंट हो रहा है पूरा इधर से इधर की तरफ, जहां पे हाई स्पीड विंड्स हैं, सर्कुलर मोशन में विंड्स हैं, जो कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेकर के आती हैं। अब क्या डिस्ट्रक्शन है? लेट अस सी। Destructions caused by cyclones. Cyclones are very destructive. Strong wind pushes water towards the shore even if storms are hundreds of kilometers away. तो चाहे साइक्लोन्स आ रहा है या बहुत दूर है, then also it is going to increase the level of the sea waves, especially बहुत ऊंची ऊंची waves उठना शुरू हो जाती हैं। अब अगर ये बहुत ऊंची वेव्स उठ रही हैं, इसका मतलब कि जो ऊंची वेव्स हैं दे आर गोइंग टू कॉज अ हाई डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन्स। क्योंकि वेव्स इसलिए कहते हैं कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो हमेशा समुद्र में से ही उठते हैं, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाता है, क्योंकि बहुत लार्ज सी एरिया है, वहां से इवेपोरेशन बहुत हाई रेट में होता है, कंडेंसेशन बहुत हाई रेट में होगा। जब कंडेंसेशन होगा तो उस समय में हीट का एक पूरा बड़ा सा एक बलून टाइप का कह सकते हो आप, हीट का एक रिलीज होता है, जो रिलीज होते समय साथ में अपने साथ वाटर को लेकर के या जो एयर है उसको एक पूरा राउंड मूवमेंट में लेकर के चलता है। Got it? So it says that cyclones are very destructive. Strong winds are going to push towards the shore and even the storms are hundreds of kilometers away. अगर बहुत दूर तक ये storms जा रही हैं, पहले ही बहुत दूर से ये storms आ रही होती हैं, तभी पता चल जाता है कि कितना destruction ये लेकर के आएगा, और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं पानी के अंदर। The waves are produced by the winds are so powerful that a person cannot overcome them. साथ में जो भी चीजें उसके बीच में आएगी वो सबको वो जो waves उठ रही हैं they are going to take all, they were going to wash away all the things which would come in its way. So again it is a very destructive kind of thing, because अगर छोटा मोटा सामान है तब तो ठीक है, but even lives of the people are getting disturbed and it gets destructed just because of these cyclones which are approaching towards the place near the seashore.
ठीक है। Cyclones are the low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. It appears as a water wall moving towards the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It reduces the fertility of soil. क्यों? क्योंकि इतना सारा बारिश होगा तो बारिश के साथ में वो फ्लड आ जाएगा। फ्लड की वजह से पूरी की पूरी लेयर सॉइल की इरोड हो जाएगी। अगर हाई स्पीड विंड्स चल रही हैं तो विंड्स के साथ भी एयर सॉइल इरोजन कॉज करेगा, जिसकी वजह से एक जो फर्टाइल लेयर है वाटर सॉइल की वो खत्म हो जाती है। ओके, कंटिन्यूअस एंड हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द कंडीशंस। क्यों? क्योंकि फ्लड सिचुएशन आ जाएगी। फ्लड सिचुएशन तो और बेकार है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा हम कुछ और नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द कंडीशन ऑफ द बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन। High speed winds are accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system, trees, causing the tremendous loss of life and property. Okay? साइक्लोन्स बहुत ज्यादा लॉस क्यों कॉज करते हैं? क्योंकि साइक्लोन्स में एक तो बारिश भी है, विंड भी है और साथ में ये वेव्स को भी लेकर के आ रहे हैं सी की। अब सी के आसपास भी लोग रहते हैं जिनकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम लोगों को पता चल जाता है जब साइक्लोन्स आता है तो कोस्टल एरियाज आर ऑलवेज मच मोर इफेक्टेड रादर दैन द प्लेन एरियाज। ठीक है, साइक्लोन से ज्यादातर कोस्टल एरियाज ही अफेक्टेड होते हैं, ना कि कोई भी आसपास का एरिया ज्यादा उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि कोस्टल एरियाज अफेक्टेड होते हैं। अब क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करता है? इट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, इट कुड बी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और डैमेज जो बता रही हूं मैं, वो डैमेज कहां कहां कॉज होता है? डैमेज, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied in the cyclones which may damage the houses, telephones, ठीक है, टेलीफोन्स। और क्या डिस्टर्ब कर देता है? कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रीज का डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे ट्रीज अपरूट हो जाते हैं एंड में डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जा रही है इस साइक्लोन की वजह से। इवन जितने कम जगह में यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, इतना ही कम डिस्ट्रक्शन नहीं होता। Destruction may be caused to the thousands and thousands of the life are being affected after the cyclones. So we cannot think of any positive thing in this cyclone. It always brings the destruction in the life of people and their property. ठीक है, सो साइक्लोन्स का हमेशा से ही डिस्ट्रक्शन रहा है। साइक्लोन ज्यादातर जो वेव्स उठती हैं उनके वजह से फ्लड आ जाती है साइड के एरियाज में, जो कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट है। बहुत हवा चलती है जिसके वजह से ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हैं, इट इज गोइंग टू बी डैमेज्ड। ठीक है, मोर ओवर द डैमेज इज गोइंग टू बी बियॉन्ड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज बीइंग कॉज्ड बाय what kind of cyclones. Okay, so cyclone is also named by different names in different parts of the world. It is named as hurricanes in different names से क्या बनते हैं? different names से आप देख सकते हो कि जो different names, इस cyclones के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जैसे कि हरिकेन्स,
अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स इट इज नेम्ड बाय हरिकेन, ठीक है। इसी तरह से और कॉन्टिनेंट्स हैं लाइक फिलीपींस एंड जापान, इट इज नोन बाय टाइफून इन जापान, ठीक है। आप बहुत सारे साइक्लोन्स के नाम लिख सकते हो जो इंडिया में आए हुए हैं पिछले 10 साल में। यू कैन फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स which are coming, which has already hit India in different years. Within years also you can write down the name of the different cyclones. अभी कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था तो उसका नाम आपने सुना होगा, है ना। इसके पहले हुदूद साइक्लोन था। ओरिजिन पॉइंट हो सकता है कुछ और हो, किसी और कंट्री में हो, बट जब भी जो इंडिया में साइक्लोन आता है वहां पर मतलब इंडियन कोस्टल एरियाज में जो हिट कर रहा है या इंडिया में हिट कर रहा है वो साइक्लोन, यू कैन इंक्लूड ऑल दोज नेम्स। सो यू कैन राइट डाउन द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट 10 years दैट व्हाट आर द डिफरेंट साइक्लोन्स। अभी तितली साइक्लोन आया था, तो बहुत सारे नेम्स होते हैं, अलग अलग नेम्स होते हैं। इनके कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। पहले एक अल्फाबेट्स बना दिए जाते थे कि इन अल्फाबेट से हम नाम रखेंगे साइक्लोन्स का। तो यू कैन फाइंड आउट हाउ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज गोइंग टू नेम द साइक्लोन विच इज अपकमिंग द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट जगह है जहां पर ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, बट इफेक्ट डिस्ट्रक्शन इट ऑल रिमेन्स सेम। ओके, नाउ in different areas sometimes the tornadoes are also being present. Okay, अब अगर हम टॉर्नेडो की बात करें, या तो टॉर्नेडो क्या होता है, तो टॉर्नेडो इन आवर कंट्री देर आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। बारिश होने की जगह वो पूरा क्लाउड ही धरती पर आ जाता है, एंड दिस इज नोन एज टॉर्नेडो, ठीक है। इट इज टॉर्नेडो। So these tornadoes are dark funnel shaped clouds reaching to the surface of earth, surface of earth, ठीक है। Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 km/h. Tornadoes may form within the cyclones. साइक्लोन्स की जो कंडीशन है वो और वर्जन तब हो जाती है जब वो टॉर्नेडो का फॉर्म ले ले। इंडिया में उतने टॉर्नेडोज नहीं आते हैं, बट डिफरेंट कंट्रीज में टॉर्नेडोज भी प्रेजेंट है। टॉर्नेडोज आर गोइंग टू इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द साइक्लोन्स, ठीक है। टॉर्नेडो इज कमिंग फ्रॉम द स्काई विच इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड विच इज कमिंग डाउन द, इस तरह से अर्थ इन अ राउंड मोशन। ये भी राउंड मोशन में है। जो साइक्लोन्स आते हैं वो भी राउंड मोशंस में ही उठते हैं, बट वो सी से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एयर को लेकर के आते हैं। ये साथ में इतना लो प्रेशर एरिया डेवलप होकर के लेकर आता है आसमान से कि जो भी आसपास की चीजें वो इसके साथ बिल्कुल घूमना शुरू कर देती हैं, ठीक है। सो दीज आर मोर सीवियर कंडीशंस। 300 km/h की स्पीड से एयर जब ब्लो करेगी, यू कैन इमेजिन व्हाट डिस्ट्रक्शन दे आर गोइंग टू कॉज। The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly in the eastern coast. The western coast of India, they are less vulnerable to the cyclonic storms, both in the terms of intensity and the frequency of the cyclones. ठीक है, तो cyclones इंडिया में आते हैं। मैंने कहा आपसे, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि लिस्ट बना करके we will discuss this in the class, that what kinds of cyclones are coming in India in past 10 years, and उसके नाम के साथ उसका ईयर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। सो विल डिस्कस दिस एक्टिविटी इन द क्लास।
नाउ टॉर्नेडोज के बारे में अगर हमें और जानना है तो टॉर्नेडोज ये भी एक बहुत हाई डिस्ट्रक्टिव इवेंट है जो कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ और पीपल का प्रॉपर्टी, पीपल की लाइफ, आई मीन द लाइफ ऑफ द पीपल, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज देयर प्रॉपर्टी, दे आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड, दे आर बीइंग डिस्ट्रक्टिव एंड दे आर बीइंग, आई मीन they are greatly damaged. Okay, so that was all about today's video, children. I will be meeting you all in the next class. We'll be discussing more about the cyclones and their measures. Okay, how to control them. So that's all for today's video. I will be meeting you all in the next class.